يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارے آج کے لیسن کا عنوان اسماء الخمسہ ہے۔ عربی زبان میں کچھ دو حرفی اسم ایسے ہیں جن کی ظاہری شکل دیگر اسماء سے مختلف ہے۔ اسماء الخمسہ کی اعرابی حالت حروف سے ظاہر ہوتی ہے، یعنی واو رفع کی علامت، الف نصب کی علامت اور یا جر کی علامت ہوتی ہے۔ ویسے تو یہ اسماء 6 یا 7 ہیں، لیکن معنوں کے لحاظ سے وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، اس لیے ہم یہاں تذکرہ 5 کا ہی کریں گے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ اسماء الخمسہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ ابن یعنی والد، اخن بھائی اور اختن بہن کو کہتے ہیں۔ ہمن دیور، فمن یعنی منہ، ذو یعنی والا یا صاحب، اور یہ ہمیشہ مضاف بن کر آتے ہیں۔ چلیں اب ہم ان کی گردانیں بناتے ہیں اور اب ان سے شروع کرتے ہیں۔ ابو، اباوان، آباؤ، ابا، اباوین، آباء، ابی، اباوین، آباء۔ آپ نے یہاں دیکھا کہ واحد کی رفعی، نصبی اور زیری حالت حروف سے ظاہر ہو رہی ہے۔ چلیں اب اخن کی گردان بناتے ہیں۔ اخن یعنی بھائی۔ اخو، اخوان اور اس کی جمع اخوان یا اخوتن ہے۔ اخا، اخوین، اخوانن، اخوتن۔ اخی، اخوین، اخوانن یا اخوتن۔ ہمن یعنی دیور۔ ہمو، ہموان، اہماؤ۔ ہما، ہموین، اہماء۔ ہمی، ہموین، اہماء۔ فمن یعنی منہ۔ فو، فمان، افواہن۔ فا، فمین، افواہن۔ فی، فمین، افواہن۔ اور اب ہم ذو کی گردان بناتے ہیں۔ ذو یعنی والا۔ ذو، ذوان، ذوون۔ ذا، ذوین، ذوین۔ ذی، ذوین، ذوین۔ اس کا مؤنث ہے ذاتن یعنی والی۔ ذاتن، ذواتان، ذواتن۔ ذاتن، ذواتین، ذواتن۔ ذاتن، ذواتین، ذواتن۔ اولو، یہ مذکر جمع کا صیغہ ہے اور اس کے معنی بھی والے کے ہیں۔ بعض کی رائے میں یہ ذو کا جمع ہے اور بعض کی رائے میں اس کا واحد استعمال میں ہی نہیں ہے۔ اولو رفعی حالت ہے، نصبی حالت اس کی اولی ہے اور زیری حالت بھی اولی ہے۔ اس کا مؤنث اولاتن ہے یعنی والیاں۔ اس کا بھی یا تو ذاتن واحد ہے یا واحد استعمال میں ہی نہیں ہے۔ اولاتن رفعی حالت ہے، نصبی حالت اولاتن اور زیری حالت بھی اولاتن ہے۔ چلیں اب ان کی قرآن میں کچھ اگزامپلس دیکھتے ہیں۔ سورہ عبسہ آیت نمبر 34۔ من اخیہ، اخی کی زیری حالت ہے من کی وجہ سے،
اور اخی ہی اضافت ہو رہا ہے، اس کے بھائی سے۔ 35 میں دیکھیے ابی ہی، ابی کی بھی زیری حالت ہے اور یہ اضافت ہو رہی ہے ابی ہی، اس کا باپ۔ سورہ انفطار آیت نمبر 20، ذی قوتن، یہ زیری حالت میں ہے، ذو ذا ذی زیری حالت ہے اور اضافت ہو رہی ہے، قوتن مضاف الیہ ہے، قوت والا۔ آگے ہی دیکھیے ذل عرشی، عرش والا، جیسا کہ آپ نے دیکھا ذو ذا ذی، یہ تینوں اس کی اعرابی حالتیں ہیں اور یہ مضاف بن کر ہی آتے ہیں، یہاں اس کی زیری حالت ہے for some reason۔ سورہ مزمل آیت نمبر 11، اولو النعمتی، آسودہ حال والے۔ سورہ مارج آیت نمبر 3، ذل مارجی، یہ اضافت ہو رہی ہے، ذی کی زیری حالت ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ذو ذا ذی یہ مضاف بن کر ہی آتے ہیں۔ ذل مارجی اونچے درجوں والا۔ سورہ قلم آیت نمبر 14، ذا مالن، ذا اس کی یہاں نسبی حالت ہے، یہ مضاف ہے اور مالن اس کا مضاف الیہ، مال والا یا صاحب مال۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2، ذوی عدلن، یہ ذوینا تھا تثنیہ کا صیغہ، مضاف بننے کی وجہ سے اس کا نون ڈراپ ہو گیا اور یہ ذوی رہ گیا، عدلن اس کا مضاف الیہ، دو عدل کرنے والے۔ آیت 4 میں دیکھیے اولاتن احمالی، اولاتن کی تنوین ڈراپ ہو گئی مضاف بننے کی وجہ سے، حاملہ عورتیں یا حمل اٹھانے والیاں۔ آیت 6 میں بھی دیکھیے اولاتی حملن، یہاں اس کی اولاتی کی نسبی یا زیری حالت ہے، حملن اس کا مضاف الیہ ہے، حمل والیاں۔ سیم سورہ آیت نمبر 10 میں دیکھیں پلیز، یا اولل الالباب، یا حرف ندا ہے، ابھی ہم اس کو آگے کریں گے، اولل الالباب عقل والے، اے عقل والوں۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 4، ذو الفضل العظیم، عظیم فضل والا۔ سورہ حشر آیت نمبر 10، لی اخواننا، یہ اخوانن ہے زیری حالت میں لی کی وجہ سے اور مضاف بننے کی وجہ سے اس کی تنوین ڈراپ ہو گئی، اخواننا ہمارے بھائیوں کو، جمع کا صیغہ ہے نا یہ۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22، آباءہم ان کے باپ یا آب و اجداد، آگے ہی آ رہا ہے اخوانہم ان کے بھائی، آباءہم اور اخوانہم دونوں ہی اضافت ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 10، یہاں دیکھیں اخوتن آ رہا ہے اور آگے ہی اخویکم، یہ اخوینا تھا، نون اس کا ڈراپ ہو گیا مضاف بننے کی وجہ سے، تمہارے دو بھائی۔ سورہ زخرف آیت نمبر 23، یہاں دیکھیں آباءنا آ رہا ہے، ہمارے آب و اجداد یا ہمارے باپ دادا۔ 26 میں دیکھیے قال ابراہیم، کہا ابراہیم نے، دیکھیے ابراہیم اس کی رفعی حالت ہے کیونکہ یہاں یہ فاعل بن رہا ہے قالا کا، لی ابی ہی اپنے باپ سے، کہا ابراہیم نے اپنے باپ سے، ابی ہی اضافت ہے اور ابی اس کی زیری حالت لی کی وجہ سے ہے، علیہ السلام، وا قوم ہی اور اپنی قوم سے۔ سورہ زمر آیت نمبر 37، ذنتقام انتقام لینے والا۔ سورہ نمل آیت نمبر 60، ذات بہجتن رونق والی۔ سورہ رعد آیت نمبر 14،
फाहू उसका मुंह। सूरे यूसुफ आयत नंबर 68 पे देखिए, लज़ू इल्मिन, ला को हटा दीजिए, ज़ू इल्मिन, इल्म वाला। 69 पे देखिए, अखाहू उसका भाई, आगे ही आ रहा है अखू का, तुम्हारा भाई। यूसुफ की ही आयत 100 पे देखें प्लीज, अबवई ही, ये अबवैनी है, इसका नून ड्रॉप हो गया मुदाफ बनने की वजह से। अबवई ही उसके माँ बाप, तस्निया का सीगा है ना ये। आगे ही देखिए, इखवती, ये इजाफत है, इखवतिन के साथ याय मुतकल्लिम लग गई, मेरे भाइयों। बैना इखवतिन, ये इजाफत हुई, उसके बाद याय मुतकल्लिम लगी और तनवीन ड्रॉप हो गई, तो ये हो जाएगा इखवती, मेरे भाइयों के दरमियान। सूरह मायदा आयत नंबर 95, जवा अदलिन, ये जवाने है रफ़ई हालत का तस्निया, इसका नून ड्रॉप है मुदाफ बनने की वजह से। दो इंसाफ करने वाले। सूरह मायदा आयत नंबर 41, बी अफवाहिम, उनके मुंहों के साथ, ये जमा का सीगा है ना। अफवाहिन मुदाफ बनने की वजह से तनवीन ड्रॉप हुई और हिम मुदाफ इलैही। सूरह सबा आयत नंबर 16, जवा तई, ये जवा तईने है तस्निया का सीगा, नस्बी या ज़ेरी, इसका नून ड्रॉप हो गया है क्योंकि ये मुदाफ बन रहा है। उकुलिन मुदाफ इलैही, कसीले मेवे वाले। यहाँ दो बागों का जिक्र है, उर्दू में बाग होता है, इसलिए हम कसीले मेवे वाले कहेंगे, वाली नहीं कहेंगे। लेकिन ये याद रहे कि ज़वातई मोनस तस्निया का सीगा है। सूरह बुरूज आयत नंबर 1, ज़ातिल बुरूज, बुर्जों वाले की। यहाँ पर भी हम वाली नहीं कहेंगे क्योंकि उर्दू में बुर्ज होता है, लेकिन अरबी में ये मुअन्नस है। आयत 5 में ही देखिए, ज़ातिल वकूद, ईंधन वाली। सूरह आले इमरान आयत नंबर 7 में उलुल अलबाब आ रहा है, अकल वाले। और आयत 13 में देखिए, ली उलिल अबसार आ रहा है, बसीरत वाले। सेम सूरा आयत 118 में देखिए, मिन अफवाहिम, उनके मुंहों से। और 119 में देखें प्लीज, बिजात सुदूर, सुदूर सदर की जमा है यानी सीना या दिल, जात सुदूर यानी सीने वालों को, यानी जो भी सीने में चीज़ें हैं या जो सीनों में छुपी बातें हैं या जो सीनों के राज हैं। इसी तरह से ज़ातुन के कुछ और मुख्तलिफ इस्तेमालात देखते हैं। सूरह कहफ आयत नंबर 17, ज़ातल यमीनी यानी दाईं तरफ, वज़ात शिमाली और बाईं तरफ। यहाँ ज़ातुन इसी तरह इस्तेमाल में आया है, यहाँ इसके मायने वाली के नहीं लेंगे बल्कि बाईं तरफ और दाईं तरफ लेंगे। सूरह अनफाल आयत नंबर 1, ज़ाता बैनिकुम, तुम सब आपस में। अनफाल की ही आयत नंबर 7 में प्लीज देखें, गैर ज़ात शौकती, गैर मुसल्लह ग्रोह। अस्माइल खमसा के अलावा 2-3 इस्म और हैं जिनकी गर्दानें कुछ मुख्तलिफ होती हैं, जैसा कि इम्राअतुन, यदुन और इब्नुन। इनकी गर्दानें बनाते हैं। इम्राअतुन, इसके मायने औरत के हैं और इसका मुज़क्कर अलमरऊ है यानी आदमी। इम्राअतुन, इम्राअताने, इसके 2 जमा हैं, निसाउन और निस्वतुन। इम्राअतन, इम्राअतैने, निसाअन, निस्वतन। इम्राअतिन, इम्राअतैने, निसाइन,
निस्वतिन। यदुन यानी हाथ, यदुन यदाने ऐदी, यदन यदैने ऐदिया, यदिन यदैने ऐदी। इब्नुन यानी बेटा और इसका मुअन्नस इब्नतुन और बिन्तुन है यानी बेटी। इब्नुन इब्नाने इसके भी दो जमा हैं, बनूना और अबनाऊ। इब्नन इब्नैने बनीना अबनाआ। इब्निन इब्नैने बनीना अबनाआ। चले अब कुरान में कुछ हम इनकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 282। इम्राअतानी, इसको यहाँ पर देखिए, ये तस्निया का सीगा है और इसकी रफ़ई हालत है, दो औरतें। आले इमरान की आयत 35 में देखें प्लीज़। इम्राअतु इमराना, ये इम्राअतुन है, मुदाफ बनते वक्त इसकी तनवीन ड्रॉप हुई और ताए मरबूता खुल गई। इमरान की औरत यानी इमरान की बीवी। सूरत अन्निसा, इस सूरत का तो नाम ही औरतों पर है। आयत नंबर 11 में निसा अन आ रहा है और आयत 11 में देखिए अबनाउकुम तुम्हारे बेटे। आयत 23 में देखिए मिन निसाइकुम तुम्हारी औरतों से। सूरह मायदा आयत नंबर 18। नहनु अबनाउल्लाही, हम अल्लाह के बेटे हैं। सूरह आराफ आयत नंबर 127। अबनाअहुम उनके बेटे। सूरह हूद आयत नंबर 45। इब्नी मेरा बेटा, ये भी इजाफत है या मुतकल्लिम मुदाफ इलैही बन रही है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 30। काला निस्वतुन कहा औरतों ने। फिल मदीनती शहर में। आगे देखें इम्रातुल अजीज़ी, यहाँ पर फिर इम्राअतुन की ताए मरबूता खुल गई और तनवीन ड्रॉप हो गई मुदाफ बनने की वजह से। अजीज़ की औरत यानी अजीज़ की बीवी। सूरह कहफ आयत नंबर 46। अल मालू वल बनूना, माल और बेटे। जीनतुल हयात दुनिया, माल और बेटे जीनत हैं दुनिया की ज़िंदगी के। सूरह मरियम आयत नंबर 8। इम्राअती, ये भी इजाफत है, मुदाफ इलैही या मुतकल्लिम है, मेरी औरत या मेरी बीवी। सूरह हज आयत नंबर 10। यदा का, ये यदाने है, तस्निया रफ़ई हालत, इसका नून ड्रॉप हो गया मुदाफ बनने की वजह से। तुम्हारे दोनों हाथ। सूरह नूर आयत नंबर 30। अबना ए हिन्ना, जमा मुअन्नस गायब की ज़मीर है, उन औरतों के बेटे। अबना ए बुऊलती हिन्ना, उनके शोहरों के बेटे, ये डबल इजाफत हो रही है। अबनाई बुऊलती मुदाफ मुदाफ इले और बुऊलती हिन्ना फिर इजाफत हो गई। बनी इख्वान हिन्ना, ये बनीना था, इसका नून ड्रॉप हो गया मुदाफ बनने की वजह से। बनी इख्वानी ये इजाफत हुआ और फिर इख्वान हिन्ना ये भी डबल इजाफत है। उनके भाइयों के बेटे। बनी अखवात हिन्ना, उनकी बहनों के बेटे, ये भी बिल्कुल वैसे ही है।
डबल इजाफत। आपने यहाँ देखा कि ये बनीना है जमा का सीगा, लेकिन मुदाफ बनने की वजह से इसका नून ड्रॉप हो गया। निसाएहिन्ना, उनकी औरतें। आयत 40 में देखिए, यदाहू, उसका हाथ। सूरह फत आयत नंबर 24, आइदियाहुम। आइदिया यदुन की जमा है, ये यहाँ नस्बी हालत है। उनके हाथ। आगे ही आइदियाकुम आ रहा है, तुम्हारे हाथ। सूरह फुस्सिलत यहाँ मीम सजदा आयत नंबर 14, मिम्बैनी ऐदीहिम, उनके हाथों के दरमियान से। हाथों के दरमियान यानी जो सामने है, उनके सामने से। और अब हम सन रे डायग्राम करेंगे। सन रे डायग्राम के ज़रिए आपको ये समझाना मकसूद है कि अरबी ग्रामर में किसी भी लफ्ज़ का असल मादा कहाँ से अखज़ किया जाता है, या यूं कह लें कि लफ्ज़ की मेन सोर्स क्या है। अरबी ग्रामर के दो मेन स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, कूफी और बसरी। कूफियून के मुताबिक हर लफ्ज़ की मेन सोर्स फेल है और उसी से तमाम अल्फाज निकलते हैं, जबकि बसरियून के मुताबिक मेन सोर्स मस्दर है और उससे तमाम अल्फाज निकलते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह सोने से मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, जैसा कि अंगूठी, कान की बाली, पाजेब, हार, टीका, झूमर, चूड़ियाँ, कड़ा, जंजीर वगैरह, ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से देखने और इस्तेमाल में मुख्तलिफ हैं, लेकिन इन सब का मादा या मेन सोर्स एक ही है, सोना। इसी तरह बसरियून कहते हैं कि मस्दर मेन सोर्स है और इससे ही हर लफ्ज़ निकलता है, जैसा कि फेल, अमर, ज़र्फ़, फ़ाइल, मफ़ूल, इसमें मुबालगा, इसमें आला, सिफ़त मुशब्बा वगैरह। और कूफियून कहते हैं कि फेल मेन सोर्स है और उससे हर चीज़ निकलती है, जैसा कि मस्दर, ज़र्फ़, फ़ाइल, मफ़ूल, इसमें मुबालगा, इसमें आला, सिफ़त मुशब्बा, तफ़दील वगैरह। अरबी ग्रामर में इन दोनों ही नज़रियात को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि दोनों ही आराएं अपनी अपनी जगह पर कवी दलाइल पर मबनी हैं। सन रे डायग्राम के बाद हम एक और डायग्राम को करेंगे जो कि फेल से मुताल्लिक है। फेल में हमने देखा था कि फेल माजी यानी गुजरा हुआ ज़माना और फेल मुदारे हाल और मुस्तकबिल दोनों के मायने देता है। फेल माजी से पहले अगर कद आए तो वो माजी करीब का मफहूम देता है। कद फ़अला, उसने किया, यानी अभी ही किया, माजी करीब में। ऐसे ही फेल माजी से पहले अगर काना आए तो वो माजी बईद का मफहूम देता है। काना फेल नाकिस होता है। काना फ़अला, उसने किया, यानी काफ़ी पहले किया। यहाँ काना और फेल का सीगा सेम होगा, यानी जो सीगा फेल का होगा काना का भी वही सीगा होगा। काना फ़अला, काना फ़अला, कानू फ़अलू, कानत फ़अलत, कानता फ़अलता, कुन्ना फ़अलना, कुन्ता फ़अलता, कुन्तुमा फ़अलतुमा, कुन्तुम फ़अलतुम, कुन्ती
फअल्ती, कुन्तुमा फअल्तुमा, कुन्तुन्ना फअल्तुन्ना, कुन्तु फअल्तु, कुन्ना फअलना। काना अगर फेले मुदारे के साथ आए तो ये माजी इस्तमरारी का मफहूम देता है, यानी किसी अमल का माजी में बार बार होते रहना या मुस्तकिल होना, इस्तमरार होना, रिपीटेडली किसी अमल का होना। इसकी गर्दान देखते हैं। काना यफ़अलू, काना यफ़अलाने, कानो यफ़अलूना, कानत तफ़अलू, कानता तफ़अलाने, कुन्ना यफ़अलना, कुन्ता तफ़अलू, कुन्तुमा तफ़अलाने, कुन्तुम तफ़अलूना, कुन्ती तफ़अलीना, कुन्तुमा तफ़अलाने, कुन्तुन्ना तफ़अलना, कुन्तु अफ़अलू, कुन्ना नफ़अलू। इंशाअल्लाह आपको ये वाज़े हो गया होगा कि कैसे फ़ेले माजी को माजी करीब, माजी बईद और माजी इस्तमरारी लिया जाता है। माजी करीब और माजी इस्तमरारी कुरान में कई मकामात पर आए हैं। चलें अब मुदारे को देखते हैं। जैसा कि आप ये जानते हैं कि फ़ेले मुदारे हाल और मुस्तकबिल दोनों के मायने देता है, लेकिन अगर मुदारे से पहले हर्फ लाम का इजाफा हो जाए तो वो फ़ेले मुदारे को हाल के लिए मखसूस कर देता है। ला यफ़अलू, वो करता है, यहाँ मुस्तकबिल के मायने ख़त्म हो गए। इसी तरह अगर फ़ेले मुदारे से पहले हर्फ सीन का इजाफा हो जाए तो वो मुदारे को मुस्तकबिल करीब के लिए मखसूस कर देता है। सा यफ़अलू, वो अन करीब करेगा, यहाँ हाल के मायने ख़त्म हो गए। और सौफा का इजाफा फ़ेले मुदारे को मुस्तकबिल बईद के लिए मखसूस कर देता है। सौफा यफ़अलू, कुछ मुद्दत बाद वो करेगा। इनकी कुरान में कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सूरे बकरा आयत नंबर 33, वमा कुंतुम तक्तुमूना, और जो थे तुम छुपाते। उनके इस अमल में इस्तमरार है, वो रिपीटेडली ये अमल करते थे। बकरा की ही आयत 134 पे देखिए, कद खलत, तहकीक गुजर गई। यहाँ ये माजी करीब का मफहूम दे रहा है, यानी अभी ही गुजरी हैं। आयत 141 में भी ये ऐसे ही आ रहा है, कद खलत। सूरे मायदा आयत नंबर 78, कानू यअतदूना, थे वो हद से गुजर जाते। 79 में देखिए, मा कानू यफ़अलूना, जो थे वो करते। मा मौसूला है यहाँ। सूरे अनाम आयत नंबर 140, कद खसिरा, तहकीक खसारे में रहे। वो लोग जिन्होंने कत्ल किया अपनी औलाद को बेवकूफ़ी से, बग़ैर इल्म के। अनाम की ही 139 आयत में देखिए, सयजज़ीहिम, अन करीब वो उन्हें सज़ा देगा। यहाँ फ़ेल से पहले सीन इस्तक़बाल का आ रहा है, जो कि मुस्तकबिल के लिए होता है। 148 में देखिए, सयक़ूलुल लज़ीना अशरकू, अन करीब कहेंगे वो लोग जिन्होंने शिर्क किया। यकूलू से पहले
سین استقبال کا ہے، یعنی فعل مضارع مستقبل کے لیے مخصوص ہو گیا۔ سورہ انعام کی ہی آیت نمبر 5 پہ دیکھیے، فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ، کچھ مدت بعد یا کچھ عرصے میں آئیں گی ان کے پاس۔ اسی کی 67 میں دیکھیے، سَوْفَ تَعْلَمُونَ، کچھ مدت میں تم جان لو گے، یا ان قریب تم جان لو گے۔ اب آخر میں قد کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ قد حرف ہے، تحقیق کے معنی اور فائدہ دیتا ہے، یعنی بات کو یقینی بناتا ہے۔ جب یہ فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے تو ماضی قریب اور تحقیق کے معنی دیتا ہے، جبکہ بعض جگہوں پر صرف تحقیق کے معنوں میں ہی آیا ہے، جن کی قرآنی اگزامپلز ہم آپ کو یہاں دے رہے ہیں۔ کبھی مزید تاکید کے لیے قد کے ساتھ لام کا اضافہ بھی کیا جاتا ہے، اور یہ قد سے لقد ہو جاتا ہے۔ حرف قد جب فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے تو یہ تکثیر یا تقلیل کا مفہوم دیتا ہے۔ تکثیر یعنی فعل کا بار بار ہونا، اور تقلیل یعنی کسی فعل کا کبھی کبھار واقع ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ يا حامل القرآن، يا حامل القرآن